ایران کے راستے ایک اور مغربی موسمی سسٹم بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کہیں برف باری اور کہیں بارش ہو رہی ہے۔ چمن شہر اور گردنواح میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ وادی کوئٹہ اور گردنواح میں ہلکی برف باری ہو رہی ہے۔ زیارت اور قلات میں بھی برف باری ہو رہی ہے۔ مستونگ، نوشکی اور خاران میں بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے منگل تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، مری اور گلیات میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے، جبکہ لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں کو کئی برسوں کے سب سے شدید برفانی طوفان کا سامنا ہے۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما اور نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برف باری ہوئی ہے اور سرد ہواؤں کا راج ہے۔ نیو یارک کے دیہی علاقے میں درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ امریکہ بھر میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں اور 8 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ اب تک سردی اور برف باری سے 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ خون جما دینے والی سردی سے 40 ریاستوں کے 24 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ واشنگٹن میں وفاقی دفاتر بند رکھنے اور نیو یارک سٹی کے اسکولوں میں آن لائن کلاسز کروانے کا اعلان کر دیا گیا۔ حکام نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک کی گورنر نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ نیو یارک کو کئی برسوں کے بعد موسم سرما کے شدید ترین طوفان کا سامنا ہے۔ نیو یارک بھر میں ہڈیوں کو جما دینے والی اور خطرناک سردی ہے۔ نیو یارک کے واٹر ٹاؤن شہر میں -34، کوپن ہیگن گاؤں میں -49 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ ہو چکا ہے۔ نیو یارک کے مختلف حصوں میں 8 سے 18 انچ تک برف پڑنے کا بھی امکان ہے۔ انہوں نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی کا کہنا تھا کہ شہر میں اب تک 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کینیڈا بھر میں برف باری اور شدید سردی کی لہر ہے۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق ٹورانٹو میں شدید برف باری جاری ہے، جس کے باعث 900 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ مونٹریال میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہیں۔ کینیڈا کے بیشتر علاقوں میں اتوار کی رات سے پیر تک شدید برف باری اور سرد ہواؤں کا امکان بیان کیا گیا ہے، جبکہ نووا اسکوشیا میں 25 سے 40 سینٹی میٹر تک برف پڑنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ امریکہ کی ریاست مین کے شہر بینگور میں نجی طیارہ ٹیک آف کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 8 افراد سوار تھے۔ طیارہ گرنے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکہ کی ریاست مین کے شہر بینگور میں یہ حادثہ پیش آیا، جہاں نجی طیارہ ٹیک آف کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 8 افراد سوار تھے۔ طیارہ گرنے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بنوں میں چشمی روڈ پر گشت کے دوران پولیس موبائل پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جب پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دوسرا واقعے میں دہشت گردوں نے قصور رابطہ پل کو بارودی مواد سے اڑا دیا ہے۔ ڈی آئی جی سجاد خان کے مطابق تھانہ ڈومیل کی پولیس موبائل روٹین گشت پر تھی، تاہم چشمی روڈ پہنچنے پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ تاہم پولیس نے بھرپور جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ دہشت گرد اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ دوسرے واقعے میں دہشت گردوں نے مریان کے علاقے میں قصور رابطہ پل کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ واقعے میں پل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایک تیسرا واقعے میں دہشت گردوں نے بسا خیل میں سڑک کنارے 5 کلو بارودی مواد نصب کیا تھا، تاہم مقامی افراد کی اطلاع پر بم ڈسپوزل اسکواڈ نے موقع پر پہنچ کر اسے ناکارہ بنایا۔ بھاول نگر میں سیم اور تھور سے لاکھوں ایکڑ زرعی زمین بنجر ہو گئی ہے۔ کھیتوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کسانوں نے احتجاج کرتے ہوئے گورنمنٹ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عارف شہزاد۔ بہاول نگر کی تحصیل فرون آباد اور فوٹ آباد میں سیم اور تھوہر نے تباہی مچا دی۔ سیم کی وجہ سے لاکھوں ایکڑ رقبے پر کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ میرے پیچھے جو آپ یہ زمین دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لہلہاتی زمین ہے۔ یہاں پر آج سے 20 سال پہلے سرسبز اور شاداب فصلیں ہوتی تھی، مگر اب یہاں پانی ہی پانی ہے۔ علاقہ مکینوں نے گورنمنٹ کی بے حسی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے
कि फौरी तौर पर इस पानी का निकास किया जाए। ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਰਕਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਰਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस पर तवज्जो दे, यहाँ से सेम नाले निकाले और ट्यूबवेल लगाए ताकि पानी का अखराज मुमकिन हो सके। वज़ीर तालीम ने सिंध के सूबे में स्कूलों में बच्चों की आमद के औक़ात कार में 4 फरवरी तक तौसी कर दी है। वज़ीर तालीम सिंध ने स्कूलों में आमद के औक़ात कार में 4 फरवरी तक तौसी कर दी है। महकमे तालीम के मुताबिक 4 फरवरी तक स्कूल खुलने के वक्त सुबह 9 बजे होगा। तर्जुमान महकमे तालीम के मुताबिक औक़ात कार में तौसी का फ़ैसला सर्दी की लहर में शिद्दत के बायस किया गया। सर्दी में इजाफे के बायस कराची में आज से स्कूल के औक़ात सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे कर दिए गए हैं। इस कबल फ़ैसले का इतलाक़ 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आला लोगों के मसाइल पर तवज्जो दें। ज़िला खैबर में पाक फ़ौज इनखला नहीं करवा रही। कोट मोमिन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि प्रोपेगेंडा किया गया कि ज़िला खैबर की वादी तीरा से लोगों का इनखला करवाया जा रहा है। ज़िला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं जिससे आम लोग मुतासिर नहीं होते। इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने के लिए वजाहत भी जारी की है। जो लोग कह रहे हैं कि इनखला गलत तासुर दे रहे हैं। तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है। जो लोग रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए और दीगर मामलात को देखते हुए, तो उस पे जो डीसी खैबर हैं उन्होंने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो एरिया स्पेसिफिक होते हैं। उसके अलावा कोई ऐसे ऑपरेशन का तासर देना कि जी फौज ऑपरेशन करने जा रही है इसलिए वो खाली करा रही है इलाके को, आईबीओज होते रहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और वो चलते रहते हैं और उनकी रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि लोगों के मसाइल पर तवज्जो दें, आप सेफ सिटी बनाएं, सीटीडी की फोर्स बनाएं, फोरेंसिक लैब बनाएं, लोगों की जिंदगी आसान करें, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें, टेररिज्म को आप काउंटर करें, उसके लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएं, मेरा उनका मशवरा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि वादी तीरा से लोगों की नकल मकानी का जवाब केपी हुकूमत दे। लोग बेअमनी और दहशत गर्दों की वजह से नकल मकानी कर रहे होंगे क्योंकि सूबाई हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। ना वफाकी हुकूमत ने ना मुसल्लह अफवाज ने किसी किस्म की अपील की है या कोई ऐसा हुक्म जारी किया है कि लोग नकल मकानी करें। जो भी ऑपरेशन होता है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, वो लोकलाइज्ड ऑपरेशन होता है। और अगर वहां पे लोग लार्ज स्केल नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां की जो अमन आमा की सूरत हाल है वो मखदूश होगी और इन अनासर से वो खुद को गैर महफूज समझते होंगे जिसकी वजह से वो नकल मकानी पे मजबूर हो रहे हैं। इस किस्म के जो मुआहदे हैं वो काबीना की मंजूरी से होते हैं और काबीना ने इसकी मंजूरी दी। जब हमें दावतनामा आया और उस वक्त फिर डेवोस के अंदर इस पर दस्तखत होने थे, इतना वक्त नहीं था कि आप इन चीजों पे उस तरह बहस करा सकते जो कि जैसे मैंने कहा कानूनी तौर पे काबीना की मंजूरी के साथ हो सकते हैं। अगर हम ये ना करते और अगर हमें ये दावत ना मिलती या हम इसमें ना जाते तो यही ऑपोजिशन इसी शद्दोमत के साथ हम पर तनकीद कर रही होती। देखा ये सफारती तनाई का शिकार है, सारे इस्लामी मुल्क उसमें चले गए, इनको किसी ने पूछा नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब रात गए कराची की जहांगीर रोड पहुँचे, तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि मुकर्ररा वक्त से पहले मंसूबे मुकम्मल करके नई मिसाल कायम की जाए। कहा वो खुद जाकर मंसूबों पर ब्रीफिंग लेंगे। बंद कमरों के मीटिंग्स का वक्त ख़त्म हो चुका है। जहांगीर रोड की अपनी अहमियत है, आवाम की तकलीफ़ का पूरा एहसास है। वो दिन दूर नहीं जब कराची दोबारा रोशनियों का शहर बनेगा। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया। यौम स्याह का मकसद दुनिया को बताना है कि भारत कश्मीरियों को नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत देने से मुसलसल इनकारी है। अपने यौम जमहूरिया पर काबिज़ भारत ने मकबूजा कश्मीर को फ़ौजी छावनी में बदल दिया है। सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा वादी में सख्त लॉकडाउन नाफिज है, जबकि रास्ते खारदार तारे और रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। गाड़ियों और राहगीरों की तलाशी ली जा रही है। काबिज़ फोर्सेस ने कार्रवाइयों से कश्मीरियों की मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दी हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को निकाल दिया है। क्या पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा? इवेंट के लिए कौमी टीम के ऐलान के बावजूद $1 मिलियन सवाल बरकरार है कि पाकिस्तान का फैसला क्या होगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज मुलाकात करेंगे। मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप में शरीक होने या ना होने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने से मुतालिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी मुशावरत का फ़ैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि मुशावरत हो रही है, हुकूमत किरदार अदा करेगी, जो फ़ैसला होगा आगाह कर दिया जाएगा। चंद रोज़ पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी मुंतकिल किए जाएँ। ICC ने बांग्लादेश बोर्ड के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मेगा इवेंट में शामिल कर लिया। टूर्नामेंट का आगाज़ 7 फरवरी से होना है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल्ड हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से PCB के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि PCB ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप भारत ना खेलने का फैसला उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनोअन अमल करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और खिलाड़ियों के दरमियान मुलाकात क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और मुकम्मल हिमायत की, जबकि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेट टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्ल्ड कप में भारत में न खेलने के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। PCB ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। हमने क्रिकेट के सुनहरे उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर पूरी तरह अमल किया जाएगा। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। बांग्लादेश और भारत के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए हैं और बांग्लादेश ने अपने मुल्क से फ़रार होकर भारत पहुंचने वाली साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को भारत से ऑडियो खिताब की इजाज़त मिलने पर भारत से एहतजाज किया है। बांग्लादेशी हुकूमत ने इज्तिमाई कत्ल की मुर्तकिब हसीना वाजिद को नई दिल्ली में खुलेआम नफरत अंगेज़ तकरीर की इजाज़त देने को बांग्लादेशी अवाम और हुकूमत की तौहीन के मुतरादिफ करार दिया है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि भारतीय हुकूमत का सज़ा याफ्ता मफरूर वज़ीर आज़म को अवामी खिताब की इजाज़त देना हैरान कुन और ख़तरनाक मिसाल है, जो दो तरफ़ा ताल्लुकात और बांग्लादेश के जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार अमन व सलामती को ख़तरे में डालता है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद ने खिताब में बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत हटाने की अपील की थी और हामियों को 12 फरवरी के आम इंतखाबात सबूताज करने पर उकसाया था। दुनिया भर में आज साफ तवानाई का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने साल 2015 में पेरिस मुआहदे में साफ तवानाई को साल 2030 तक 60% तक पहुँचाने का वादा किया था। मुल्तान से जौदत नदीम की रिपोर्ट देखिए। साफ़ तवानाई से मुराद ऐसी तवानाई है जो माहौल को आलूदा किए बगैर, ग्रीन हाउस गैसों का अखराज किए बगैर और कुदरती वसाइल को नुकसान पहुँचाए बगैर हासिल की जाए। इस तवानाई के पायदार ज़राए में शमसी, हवाई और हाइड्रो पावर पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में तवानाई का शोबा ज़्यादा इन्हिसार दरामदी ईंधन, ऑयल, गैस और कोयले पर है, जो मुल्की ज़र मुबादला और गर्दिशी कर्ज़ों पर 2.6 ट्रिलियन रुपए का बोझ डालता है। न्यू पॉलिसी आई है, उसकी वजह से जो एडॉप्शन की जो पेस थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को और ख़ास तौर पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस हवाले से सोचना चाहिए कोई ऐसी विन विन पॉलिसी हो जिसमें गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और जो एंड यूज़र्स हैं और कंज्यूमर्स हैं वो भी जो है ना सोलर एडॉप्शन की तरफ जाएं। पाकिस्तान भर में साफ तवानाई के हसूल का सबसे बड़ा ज़रिया सोलर प्लेट्स हैं और यही वजह है कि मुल्तान के हर घर और इमारत की छत पर सोलर प्लेट्स ही नज़र आती हैं। ये सोलर प्लेट्स माहौल को साफ रखने के साथ साथ सस्ती बिजली के हसूल में एक मौसर ज़रिया बन गई हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 2024 में 17 गीगावाट सोलर पैनल्स दरामद किए, जो मुल्क की मजमूई तवानाई की पैदावारी सलाहियत का 36% बनता है। बिजली के बिल 1-1 लाख से भी ऊपर आ जाते थे, तो फिर हमने सोचा कि ये सोलर प्लेट्स लगाए जाएं, पैनल्स लगाए जाएं, जिसकी वजह से हमारा जो घर का खर्चा हो हम वापडा के बजाय इस पे शिफ्ट हो जाएं। हुकूमत की नई एनर्जी पॉलिसी के तहत नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील कर दिया गया है। शहरियों के मुताबिक ये पॉलिसी साफ तवानाई के फ़रोग में रुकावट का सबब बन सकती है।
माहिरीन के मुताबिक साफ़ तवानाई के इस्तेमाल से न सिर्फ मालियाती आलूदगी में कमी हो सकेगी बल्कि ईंधन की दरामदात पर खर्च होने वाले खतीर ज़र मुबादला को भी बचाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ जौदर नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। स्टार बैटर बाबर आजम और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी शामिल हैं। ख्वाजा नाफे और उस्मान तारिक को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। हारिस रऊफ जगह नहीं बना सके। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद, हेड कोच माइक हैसन ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान किया। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, साहबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह शामिल हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया गया। आकिब जावेद का कहना है कि हारिस रऊफ एक अरसे से हमारे साथ हैं। कॉम्बिनेशन को जहन में रखकर टीम बनाई गई है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। HBL PSL में प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगी। टॉप कैटेगरी में ऑक्शन की बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए रखी गई है। दीगर बेस प्राइस में 2 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख और 60 लाख शामिल हैं। प्लेयर्स ऑक्शन पाकिस्तानी रुपए में होगी। वर्कशॉप में फ्रेंचाइज नुमाइंदों समेत चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों, PSL मैनेजमेंट और PCB ऑफिशियल्स ने भी शिरकत की। फैसला किया गया कि HBL PSL में प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। टॉप कैटेगरी में ऑक्शन की बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए रखी गई है। दिगर बेस प्राइस में 2 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख और 60 लाख शामिल है। प्लेयर्स ऑक्शन पाकिस्तानी रुपए में होगी। ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए से कम की बोली में कम से कम 2.5 लाख का इजाफा होगा। 2 करोड़ 20 लाख से कम बेस प्राइस में 5 लाख, 4 करोड़ 20 लाख से कम वाली बोली में 10 लाख, 4 करोड़ 20 लाख से ऊपर की बोली में 15 लाख का इजाफा किया जाएगा। स्क्वाड कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। एक स्क्वाड में ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 गैर मुल्की खिलाड़ी होंगे। फ्रेंचाइज के लिए जरूरी है कि प्लेइंग 11 में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 गैर मुल्की खिलाड़ी खिलाएं। हर फ्रेंचाइज अनकैप्ड 2 अंडर 23 खिलाड़ियों को स्क्वाड में और एक को प्लेइंग 11 में लाजमी रखेगी। PSL 11 में पिक या रिटेन होने वाले खिलाड़ियों का फ्रेंचाइज के साथ 2 साल का मुआहिदा होगा। PSL 12 के बाद ग्रैंड ऑक्शन मुनक्किद किया जाएगा, जिससे कबल हर फ्रेंचाइज को ज्यादा से ज्यादा 5 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी। PSL 11 में हर फ्रेंचाइज एक गैर मुल्की खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन कर सकेगी। ऑक्शन के लिए हर फ्रेंचाइज के पास 45 करोड़ का बजट होगा। डायरेक्ट साइनिंग को शामिल करके बजट 50 करोड़ 50 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। वर्कशॉप के बाद मोहसिन नकवी का कहना था कि फ्रेंचाइजेस, खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के दरमियान इजलास खुश आइंद रहा। PSL के लिए ऑक्शन मॉडल एक तारीखी कदम है। खिलाड़ियों को ज्यादा सैलरी पर्स और बेहतर माली मौके फराहम होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद का कहना है कि हमें T20 क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट समझने की बजाय अलग तरीके से सोचना होगा। इस फॉर्मेट में किसी बैटर का नंबर मुस्तकिल नहीं होता। वाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन कहते हैं कि वर्ल्ड कप में ख्वाजा नाफे को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया है। लाहौर के खजाफी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के ऐलान के मौके पर गुफ्तगू में आकिब जावेद का कहना था कि ये टीम कुछ अरसे से एक साथ खेल रही है, इसलिए किसी खिलाड़ी का इंतखाब हैरान कुन नहीं है। वो स्क्वाड की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। उम्मीद है कि टीम अच्छा खेलेगी और वर्ल्ड कप जीतेगी। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को ज़रूरत के तहत मुंतखब किया गया है। और ये वही टीम है, अगर आप देखें तो पिछले जो 3-4 सीरीज़ हुई हैं वो उसकी कंटिन्यूटी ऐसे नहीं है कि कोई वर्ल्ड कप के लिए कि हमको बहुत स्पेशल कोई डिफरेंट टीम बना रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा अभी भी T20 क्रिकेट को टेस्ट की तरह लेते हैं या वनडे की तरह लेते हैं। T20 इज़ इंटायरली डिफरेंट। अब अगर आपसे मैं किसी भी टीम का पूछ लूँ ना, तो मुझे नहीं पता, या ना आगा कोई पता होगा कि बाकी श्रीलंका की कौन सी बैटिंग ऑर्डर है या इंडिया का कौन सा बैटिंग ऑर्डर है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें T20 क्रिकेट को डिफरेंट तरीके से सोचना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना था कि उस्मान खान जब से आए हैं गैर मामूली खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। साहबजादा फरहान को भी हमने विकेट कीपर के तौर पर देखा है, जबकि ख्वाजा नाफे को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर मुंतखब किया है। पाकिस्तान T20 स्क्वाड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा।
قذافی اسٹیڈیم میں قومی T20 ٹیم کے کھلاڑیوں نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ پہلے روز تمام کھلاڑیوں نے سیشن میں حصہ لیا۔ وارم اپ کے بعد کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں پریکٹس کی۔ بیٹرز کا زیادہ فوکس پاور ہٹنگ پر رہا۔ انہوں نے الگ الگ پاور ہٹنگ کی پریکٹس کی۔ فاسٹ بالرز بھرپور ردھم کے ساتھ نیٹ پریکٹس کرتے رہے۔ بابر اعظم، شاداب خان اور سلمان علی آغا سمیت دیگر بیٹرز نے نیٹ پر بھرپور پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں نے اس دوران کیچز کی پریکٹس بھی کی۔ 3 میچز کی سیریز کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم 28 جنوری کو لاہور پہنچے گی، جبکہ سیریز کا پہلا میچ 29 جنوری کو کھیلا جائے گا۔ مری میں ایک دفعہ پھر سے گہرے بادلوں کی انٹری ہو گئی ہے۔ وادی میں خون جما دینے والی سردی کا راج ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے آج سے مری میں برف باری کے نئے اسپیل کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مری سے صورتحال بتائیں گے جواد شوکت عباسی۔ جی دیکھیں، میں اس وقت مری میں ہوں اور مری کے آج کے موسم کے اگر احوال بتاؤں تو آج شدید گہرے بادلوں کی لپیٹ میں پورا مری، اور نہ صرف بادل بلکہ یخ بستہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور صبح کے ٹائم خون جما دینے والی سردی کا راج ہے۔ اس وقت مری میں جو ہے وہ سیاح بہت کم تعداد میں موجود ہیں، چونکہ ورکنگ ڈے ہے، اور اس وقت جو سیاح مری میں موجود ہے وہ اب تک اپنے ہوٹلز میں ہیں، لیکن جو سیاح یہاں مار روڈ کے اوپر ہیں وہ مری کے اس ٹھنڈے موسم کو خوب انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ میں بات کروں تو چونکہ آج سے محکمہ موسمیات نے ملکہ کوثار، مری اور گلیات میں ایک اور برف باری کے اسپیل کی نوید سنا رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے طلوع عرص سے سیاح جو ہے وہ کھینچے چلے مری کی طرف آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو گزشتہ برف باری ہوئی تھی وہ تقریباً اب بھی پورے مری میں موجود ہے، اور ایک اور نئے اسپیل سے جو ہے وہ مری جو ہے وہ مکمل طور پہ برف کی سفید چادر اوڑھنے کے لیے تیار ہے۔ متوقع برف باری کے پیش نظر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مری ہے اس کو بھی ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ جتنے بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو پہلے سے ہی فیلڈ میں جو ہے متحرک رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ ہائی وے، ٹریفک پولیس اور دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا جو اسٹاف اور عملہ ہے وہ اس وقت بھی فیلڈ میں جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہاں میں بات کروں محکمہ موسمیات کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق ملکہ کوثار، مری اور گلیات میں آئندہ 24 گھنٹے شدید بارش اور برف باری کے امکانات موجود ہیں۔ جی، شکر گڑھ اور گرد و نواح میں دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے، جبکہ سردی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے انجینئر منظور حسین۔ شہر اور گرد و نواح میں صبح سویرے سے شدید دھند کا سلسلہ جاری ہے۔ دھند کے باعث شکرگڑھ ناروا روڈ پر حد نگاہ متاثر ہے۔ نور کوٹ سے لے کر کرتارپور تک حد نگاہ 30 میٹر، جبکہ کرتارپور سے لے کر جسڑ تک حد نگاہ 20 میٹر ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور ہو سکے تو قطاروں کی صورت میں درمیانی اسپیڈ پر سفر کریں۔ کرتارپور آنے والے زائرین دن کی روشنی میں سفر کریں اور اوور اسپیڈنگ سے پرہیز کریں۔ جی، لاہور کے علاقے گلبرگ ایم عالم روڈ پر ہوٹل میں آگ لگنے کے واقعے میں نامزد 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمے میں ہوٹل مالک سمیت 5 افراد نامزد ہیں۔ ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق گرفتار ملزمان میں 2 نامزد ملزم کامل اور بلال شامل ہیں، جبکہ 3 نامزد ملزمان فضیل احمد، ندیم مرزا اور عاطف کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہوٹل میں آگ لگنے کی FIR تھانہ گلبرگ میں درج کی گئی۔ آتش زدگی کے واقعے میں 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے تھے، جبکہ قیمتی سامان اور املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ FIR ہوٹل انتظامیہ کی غفلت اور فائر سیفٹی وارننگ پر عمل نہ کرنے پر درج کی گئی۔ تکنیکی تفتیش اور فورنزک عمل بھی جاری ہے۔ مظفر گڑھ میں بڑے بڑے سٹوروں پر چوری کی وارداتوں کے باعث پولیس کے لیے درد سر بن جانے والا چوروں کا گینگ آخر کار پکڑا گیا۔ چوروں نے گزشتہ کچھ عرصے میں ہی بڑے سٹوروں سے لاکھوں روپے لوٹ کر تاجروں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ پولیس کے مطابق گینگ شہر کے بڑے بڑے سٹورز میں حالیہ کچھ عرصے میں ہونے والی لاکھوں روپے مالیت کی چوری کی کئی وارداتوں میں ملوث تھا۔ گینگ کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار افراد کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرینڈ الائنس کی کال پر سرکاری ملازمین کا احتجاج جاری ہے۔ اب تک سینکڑوں ملازمین گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیل بتائیں گے عابد بلوچ۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں نصیر آباد، جعفر آباد، کچی اور سپری میں ملازمین کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور بلوچستان گرینڈ الائنس کی کال پر ملازمین کی جانب سے گرفتاریاں بھی دی جا رہی ہیں۔ نصیر آباد ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر ڈیرہ مراد جمالی میں سب سے زیادہ گرفتاریاں پیش کی گئی۔ ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، بعد میں جو ہے سینکڑوں ملازمین نے رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں پیش کر دی۔ ملازمین کی جانب سے گزشتہ 4 روز سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس سے نہ صرف معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئی ہے، بلکہ ہسپتال اور تعلیمی ادارے بند ہونے سے
मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस मौके पर मुलाजमीन का कहना है कि जब तक इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते इनका एहतजाज जारी रहेगा। जी। कराची के बाद हैदराबाद में भी ई चालान सर्विस शुरू करने का ऐलान किया गया है, लेकिन 1 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद ई चालान सर्विस का आगाज़ नहीं हो सका। अली नईम रिपोर्ट करेंगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में 1 माह गुजर जाने के बावजूद ई चालान सिस्टम मुतारिफ नहीं कराया जा सका। ना ही शहर के अहम मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब का अमल मुकम्मल हो सका है। दूसरी जानिब शहर में बेहंगम ट्रैफिक, टूटी फूटी सड़कों और इंक्रोचमेंट के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। देखिए, ई चालान का निज़ाम तो अच्छा निज़ाम है, लेकिन इससे पहले निज़ाम से पहले लोगों को आगाही तो दें। हमारी रोड इतनी ख़राब है हैदराबाद की, हमारे रोडों पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। पहले रोडों की हालत है, जो रस्तों की हालत है वो सही नहीं है। ये ऊपर से ई चालान ला के आवाम पे जो बोझ है वो डाल रहे हैं। आवाम को चाहिए इस चीज़ से डरना नहीं है। ई चालान कोई इतनी बात नहीं है। चालान का मकसद ये है गलत आने जाने की वजह से होता है। DIG हैदराबाद का कहना है कि मीरपुर खास हैदराबाद रोड पर सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन बाकी शहर में सिस्टम के निफाज के लिए काम जारी है। ये मेरे ख्याल 2 या 3 महीने में हमने कुछ कर दिए हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ प्रोक्योरमेंट चल रही है। मेरे ख्याल 3 महीने में यहाँ पर मेन रोड हमारे कवर हो जाएंगे। ई चालान सिस्टम को मुतारिफ करवाने के लिए प्रोक्योरमेंट, टेंडरिंग और इंस्टॉलेशन अपनी जगह, लेकिन निज़ाम को लुक आफ्टर कौन सा महकमा करेगा फिलहाल तयन नहीं हो सका है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि ई चालान सिस्टम के निफाज से कबल शहरियों को इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सुथरी सड़कें फराहम की जाएं। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़ हैदराबाद। कराची में संघ सेंटर फॉर वोकेशनल एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग के सॉफ्ट लॉन्च का इनकाद हुआ। टेलीस्कोप के जरिए सितारों की दुनिया से रोशनास करवाया गया। फल्कियात के अमरीकी प्रोफेसर ने शमसी निज़ाम से मुतालिक आगाही भी फराहम की। रिपोर्ट करेंगे जमार जोखियो। जिंदगी ट्रस्ट के इश्तराक से संघ सेंटर फॉर वोकेशनल एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग की सॉफ्ट लॉन्च की तकरीब कोरंगी क्रीक में हुई, जिसमें मुतादिद टेलीस्कोप्स के जरिए सैयारों और सितारों का मुशाहिदा कराया गया, जबकि उनके बारे में मालूमात भी फराहम की गई। सेंटर के बानी खालिद महमूद ने बताया कि यहाँ मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा को सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि साइंस की तालीम भी दी जाएगी। उन्होंने तालीमी शोबे में मारूफ सिंगर और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया। जनवरी में जो है एस्ट्रोनॉमी में जो डीप स्काई देखने का बड़ा सुनहरी मौका है, क्योंकि आसमान साफ़ होता है और हम ये जो हमारी अर्थ है वो एक ऐसे इस जगह पे होती है जहाँ पे जो जुपिटर है बहुत साफ़ नज़र आता है, ओरायन साफ़ नज़र आता है उनके। तो इस तरह से दूसरे नेबुलास भी आते हैं, दूसरे स्टार्स भी आते हैं। तो फिर हमने सोचा कि इस वक्त ये इसकी सॉफ्ट लॉन्च कर दें। बानी जिंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय ने कहा कि यहाँ थिएटर समेत मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये इदारा तालीम और फ़नून का मरकज़ बन सकता है। यहाँ पर हर तरह की जो आर्ट है, जैसे फिल्म मेकिंग है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग है, जैसे बहुत बड़े ऑडिटोरियम बने हुए नीचे, बेस्ट थिएटर हो सकता है। तो उन तमाम लोगों को मौका मिलेगा यहाँ पर आकर अपने टैलेंट को आजमाने का। और ऐसी कोई एक छत के नीचे इस मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं है। अमेरिका से आए फल्कियात के प्रोफेसर सलमान हमीद ने शमसी निज़ाम और दीगर सैयारों पर ज़िंदगी के आसार पर गुफ्तगू की। उन्होंने सितारों के बनने और टूटने पर भी अपने इल्म से शुरका को आगाह किया। आपने सैयारे देखे पहली दफ़ा, या आपने सैटर्न, जुपिटर देखा, या ओरायन नेबुला देखा, तो उससे आपको शौक डेवलप होता है। शौक का मतलब ये नहीं कि आपने एस्ट्रोनॉमी करनी, लेकिन शौक का मतलब ये है कि आपने जुस्तजू आप में दरियाफ्त हुई। तो इस किस्म के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर जुस्तजू को प्रमोट करें, क्यूरियोसिटी को प्रमोट करें, वो इंग्रेडिएंट हैं कि आगे की डेवलपमेंट के लिए। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से वो बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि उसमें शौक डेवलप होता है। खालिद महमूद ने बताया कि सेंटर का बाकायदा आगाज़ चंद माह में कर दिया जाएगा। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।